Hello students, how are you? I hope you all are really good. I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which name is Adventures of Gulliver. Learning outcome से start करते हैं बच्चों. Students understand that all fiction stories have plot elements. Students will understand how to write a well-structured paragraph to describe a past event. Cross curriculars integrations के अंदर बच्चों information technology and next दिया गया बच्चों about the lesson. So Jonathan Swift wrote about the adventures of Gulliver who had a passion for sea travel. During one of his voyages, he wore ship's wrecks close to an island near the South Sea. He managed to reach the islands, which he thought was the uninhabited. Read on to find out what he discovered. Then here are some questions, bachcho, and dive in. First is, are you fond of traveling? And how do you prefer to travel? By train, by air, or by sea? And according to you, what are the risks involved in each of these modes of transport? Then let's begin the story, bachcho. Deep waters. I accepted the lucrative offers from the Captain William Pritchard, master of the Antelopes, who was making a voyage of the South Sea. We set sail from the Bristol, and our voyages was at first very fine. However, we had hardly been 2 weeks into our voyages when a violent storm drove us to the northwest of Van Diemen's Land and eventually shipwrecked us. Our crew made the best use of the lifeboats, but the glasses and the gales were so strong that we were quickly overturned. What became of any companions in the boats as well as of those who escaped on the rock or were left in the vessels, I do not know. I can only conclude that they are all lost. For my own part, I swam as fortune directed me and was pushed forward by wind and tide to a desolate island where I saw no living beings. Then बच्चों यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो है कि मैं एक्सेप्टेड कर लेता हूँ लुक्रेटिव ऑफर को. कहाँ से? कैप्टन विलियम प्रिचर्ड से, जो मुझे मिला हुआ था. मास्टर ऑफ एंटेलोप कहलाते हैं, जो वोवेज जिन्होंने रेडी किया था टू द साउथ सी की तरफ. और हम पूरा सेट हो जाता है बच्चों. सेल फ्रॉम द ब्रिस्टोल से स्टार्ट होता है और हमारा जो वोवेज होता है वो है फर्स्ट वेरी फाइन. और वी हैड हार्डली बीन 2 weeks इनटू आवर वोवेज, और सिर्फ हमें 2 हफ्ते ही हुए थे वोवेज के अंदर. देन वायलेट स्टॉर्म वहाँ पर आ जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ वैन डायमंड्स लैंड पर, और यहाँ पर इवेंचुअली तरीके से जो शिप है वो रेस्ट करता है. लेकिन जो क्रू है मेड द बेस्ट यूज ऑफ द लाइफ बोट्स, यूज तो करता है बट इतना ज़्यादा जो गेल्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी वर क्विकली ओवरटर्न, और प्रॉपर तरीके से वो ओवरटर्न हो गया था. Then became of the companions in the boat, I only the conclude that we are lost. सबके सब खो चुका था. एंड मैं वहाँ पर तैर के जाता हूँ. I swam as fortune directed me. और जहाँ पर मुझे ले जाया जा रहा है मैं वहाँ पर तैरता हुआ जाता ही जा रहा हूँ. मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ by wind and tide to desolate island where I saw no living beings. और मैं पहुँच जाता हूँ एक आइलैंड पर जहाँ पर कोई भी मुझे लिविंग बींग्स नजर आ ही नहीं रहा था. I lay down on the grass which was very short and soft. I slept soundly for what I think was about 9 hours. For it was just daylight when I woke up. I attempted to rise but was not able to stir as I happened to lie on my back. Then यहाँ पर मैं लेटा हूँ प्रॉपर तरीके से. शॉर्ट विच वॉज वेरी शॉर्ट है, सॉफ्ट है, ग्रास पर, और वहाँ पर मैं सो रहा हूँ गहरी नींद में. आई स्लेप्ट साउंडली फॉर व्हाट आई थिंक वॉज माई 9 hours. और मुझे 9 घंटे हो गए हैं, डे लाइट हो चुकी है. तब मैं उठता हूँ और यह उठने के बाद मैं क्या देखता हूँ, वॉज नॉट एबल टू स्टर, मैं हिल भी नहीं पा रहा था. आई हैपन टू लाई ऑन माई बैक, और प्रॉपर तरीके से मैं अपनी बैक पर सो ही जा रहा हूँ. देन यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन भी दिया गया है, व्हाई वाज द गुलिवर नॉट एबल टू गेट अप. देन as I happened to lie my back, I found my arms and legs were strongly fastened to each side to the ground, and my hair, which was long and thick, was tied down in the same manner. और मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे बाल जो हैं वो बंधे हुए हैं. बच्चों आप देख पा रहे हो ना, तो इस तरह की कंडीशंस उसकी वहां पर बनी हुई थी.
then neither able to sit up nor move. और वो क्या बताता है, ना तो मैं बैठ पा रहा हूँ ना मूव कर पा रहा था. ये क्या हो रहा था मेरे साथ? I could not only look upwards and the sun began to grow hot and the light hurt my eyes. I heard a confused noise about me, but in the postures I lay, I could see nothing except the sky. In a little time, I felt something moving on my left leg, and it advanced gently forward over my body and came almost up to my chin. Bending my eyes downwards as much as I could, I saw that looked like a human creature, not 6 inches high, with a bow and arrow in his hands, not a quivers at his back. तो बच्चों उसको इतना प्रॉपर तरीके से टाई कर दिया गया था कि वो हिल ही नहीं पा रहा था, ना अपने हाथों को हिला पा रहा है, ना अपनी बॉडी को हिला पा रहा था, और ना अपने प्रॉपर तरीके से उसकी चेन वगैरह को भी अप डाउन नहीं कर पा रहा था. और उसके बाद वो जितना जेंटली तरीके से मूव कर पा रहा था तो वो भी उसकी बॉडी मूव करने में हेल्पफुल नहीं थी. लेकिन वो थोड़ा सा बैंड अपनी आइज को करता है डाउनवर्ड्स में और देखता है जितना भी हो सकता है वो देख पा रहा था. तो देख रहा है कि छोटे छोटे ह्यूमन क्रिएचर्स हैं जिसकी हाइट जो है नॉट हाई 6 इंचेस, वो 6 इंचेस से भी ऊपर ही नहीं थे, 6 इंचेस के थे बच्चों. और बो के साथ ही, एरो के साथ ही, इन हिज हैंड्स एंड क्वेयर एट हिज बैक, और एरो के साथ, बो के साथ खड़े हुए हैं और मेरे आसपास मुझे नजर आ रहे हैं. ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम आई फेल्ट एट लीस्ट 50 मोर ऑफ द सेम काइंड as I imagined. Following the first, from the sheer astonishment, I roared so loud that they all ran back in a fright, and some of them seemed to suffer injury from the falls they got by leaping from my body onto the ground. However, they soon returned, and one of them, who ventured as far as to get a full sight of my face, lifting up his hands and eyes by way of the admirations, carried out a shrill and distinct voice, and Hakina Diggle, the others repeated the same words several times. If only I knew that what they meant. देन बच्चों यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने महसूस किया एटलीस्ट 50 मोर बिल्कुल सेम ही थे और वहाँ पर खड़े हुए थे, साथ में इधर उधर खड़े हुए हैं सबके सब. और मेरी जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ निकलती है सबके सब डर के भाग जाते हैं या कुछ इंजर हो जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं. मैं देख रहा हूँ उनको कि वो कैसे दिख रहे हैं, ग्राउंड में गिर गए मेरी आवाज़ सुनकर. मैंने ऐसा लगा कि पूरा दहाड़ दिया हो या मुझसे वो बहुत ज़्यादा डर रहे हो. और ये काफ़ी वेंचर्ड सो फार एज फुल साइड ऑफ माई फेस, lifting up his hands, eyes by way of the admirations, carried out the shrill, distinct voice. Then वहाँ पर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है बच्चों? Hakina Diggle. इस तरह की आवाज़ बार बार रिपीट होती जा रही है सेवरल टाइम्स. इफ़ ओनली आई नो व्हाट दे मेंट, और उनको ही पता था कि क्या बोल रहे हैं. इफ़ ओनली आई न्यू दैट व्हाट अ मेंट. देन आई ले ऑल दिस वाइल इन ग्रेट अनसीजन. देन यहाँ पर पूरा का पूरा मतलब देख रहे थे उन चीज़ों को ऑन अनईजीनेस की तरह दिख रहा था. एट लेंथ स्ट्रगलिंग टू गेट लूज, I was able to break the strings and wrench out the bags and fasten my left arm to the ground. I discovered how they had bound me, and so with the violent pull, I obsessed with the strings that tied down my hair on the left side. Now I was just able to turn my head about 2 inches. और मैं यहाँ पर जैसे अपनी थोड़ी थोड़ी मूव करने लग जाता हूँ, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ लूज करने का अपने आप को, स्ट्रिंग्स को तोड़ने का, ब्रेक द स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रेच आउट द पैक्स, फास्टेड माय लेफ्ट आर्म टू द ग्राउंड. मैं डिस्कवर किया, मैंने क्या देखा, हाउ दे हैड बाउंड मी, किस तरह से उन्होंने मुझे पूरा बाउंड किया हुआ था और वॉयलेंट पुल के साथ मुझे बांधा हुआ था. मैं उन स्ट्रिंग को लूज करने लग जाता हूँ जो मुझे टाई कर रखी थी लेफ्ट साइड से भी, एंड आई वॉज जस्ट एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस. अब जैसे ही बच्चों 2 इंचेस तक उसका हेड जा पा रहा था, थोड़ा इधर उधर देख पा रहे हैं. द क्रिएचर्स ran off a second time before I could seize them, whereupon there was a great shout in a very shrill accent, and after it ceased, I heard one of them cry loud, Tolgophonic. No sooner had the cry been made than my left hand was covered with tiny arrows that pricked me like so many needles. They sent another volley of arrows into the air. Some fell on the body and some of my face, which immediately covered with my left hand. और बच्चों ये जैसे ही मैं थोड़ा अपने आप को लूज कर रहा हूँ, आवाज़ निकाल रहा हूँ,
टॉल गो फोनिक, और यहाँ पर मुझे आवाज़ आने लग जाती है, चिल्लाने लग जाते हैं, और तभी वो मेरे ऊपर एरो छोड़ने लग जाते हैं बच्चों। और एरो मेरे शरीर में ऐसे घुस रही थी जैसे कि छोटी छोटी निडल जा रही हो मेरे शरीर में, वो अपनी तरफ से एरो हवा में चलाई जा रहे हैं और वो मेरे ऊपर आ रही हैं। तो ऐसा लगा था मेरी बॉडी में छोटी छोटी सुइयाँ चुभ रही हों। मेरे फेस पल फेल ऑन माई बॉडी, सम ऑफ माई फेस, और आई इमीडिएटली कवर्ड विद माई लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से मैंने जल्दी से उसको कवर भी कर लिया। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द साइज ऑफ द पीपल्स हु वर थ्रोइंग टिनी एरोज। तो नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन दिस शावर ऑफ द एरोज वाज ओवर आई ग्रोन्ड विद द ग्रीफ एंड पेन, and then on my striving again to get loose, they discharged another volley larger than the first, and some of them attempted with the spears to stick me in the side. But by good luck I had on a leather jacket which they could not pierce and saved from the spears. Yes, but what was in store for me next I never could have imagined. Then बच्चों जैसे ही यहाँ पर एरोज की बारिश होनी शुरू हो गई थी, शावर होने लगी थी, तो मेरे को काफ़ी थोड़ा दर्द भी महसूस हो रहा था, मैं दुख भी लग रहा था, मुझे मेरी बॉडी हल्का हल्का पेन भी कर रही थी। लेकिन अच्छा हुआ था मैंने लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, तो मुझे ज़्यादा कोई हार्ड चोट नहीं लगी थी किस तरह से। और मैं अब इमेजिन कर रहा था अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। नेवर कुड हैव इमेजिन। देन ये एक्सट्रैक्ट एडेप्टेड फ्रॉम द गुलिवर्स ट्रैवल से ली गई है बच्चों, बाय जोनाथन स्विफ्ट से। देन बच्चों यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड दी गई है एक्सरसाइज क्रॉसिंग द ब्रिज के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड गुलिवर अराइव ऑन द डिसॉल्व्ड आइलैंड? सो ही एंड हिज क्रू लैंडेड देयर, ही स्वैम ashore after a shipwreck, he could not remember, and he was kidnapped. देन यहाँ पर बच्चों वो कैसे आया था, उसको याद ही नहीं था कि वो कैसे आया। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो रिमेनिंग पार्ट को भी बच्चों कंप्लीट करते रहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप करेंगे पैराग्राफ को रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है, बेंडिंग माई आईज डाउनवर्ड्स एज मच एज आई कुड, आई सो what looked like a human creature not 6 inches high, with a bow and arrow in his hands and a cuirass at his back. Almost at the same time, I felt at least 50 more of the same kind, and I imagined following the first. From the sheer astonishment, I roared so loud that they all ran back in. तो इसी पैराग्राफ पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन दिए गए हैं। What does the first refer to? यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड दिया गया था बच्चों, सो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसमें पूछा गया है कि फर्स्ट किस चीज को रेफर कर रहा है, तो हमने पैराग्राफ में देखा था कि उसने कैसे महसूस किया था कि 50 मोर ऑफ द सेम काइंड, जैसा कि वो देख पा रहे थे वैसे ही और भी आ गए थे। तो यहाँ पर जो 6 इंचेस फीट के लोग थे, मैन थे, जो ह्यूमन बीइंग थे, उनको ही यहाँ पर फर्स्ट से रेफर किया गया है जो उसने सबसे पहले देखा था। तो रिमेनिंग क्वेश्चन को भी बच्चों पैराग्राफ को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है रीड एंड रिफ्लेक्ट के अंदर आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन दिए गए हैं। व्हाट हैपेंड टू गुलिवर्स आफ्टर द शिपरैक? तो क्या हुआ था बच्चों, तो पूरा शिपरैक के बाद बच्चों वो अपने आप को जितना तैरा सकते थे उतना तैरा के, और वो कहीं चले जाते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता वो कौन सी जगह पर आए हुए हैं, क्योंकि वो तो बेहोश थे बच्चों। तो यहाँ पर भी बच्चों और रिमेनिंग क्वेश्चंस के भी आंसर करते रहेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड रैप के अंदर वर्ड बिल्डिंग, जिसमें आप कंप्लीट करेंगे लिंकर्स को। सो रीड द सेंटेंस फर्स्ट। A violent storm drove us to the northwest of the Van Diemen's Land and eventually shipwrecked us. The underlined words links a piece of information in sequence. Words and phrases that establish a link between one idea or piece of information and the next are called the linkers. So use the linkers from the box to fill in the blanks like eventually, consequently, however, probably, moreover. तो जैसे कि बच्चों फर्स्ट दिया गया है, it was a foggy day dash the train were running late. So it was a foggy day, eventually हो सकता है या फिर however हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका however the trains were running late. So next भी बच्चों कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर लिंकर्स यहाँ पर फिल करेंगे आप। नेक्स्ट दिया गया बच्चों टॉक टाइम के अंदर इंटरव्यू। So imagine that you are Gulliver. One of the teeny creatures wants to know more about you because he realizes you are different and can teach them many things.
वर्क इन पेयर्स, डू एन इंटरव्यू विद योर पार्टनर्स विच कैन स्टार्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर बच्चों दिए गए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, लाइक आप फर्स्ट पूछ सकते हो वेयर आर यू फ्रॉम, तो सेकंड आपका जो पार्टनर को आंसर देगा आई एम फ्रॉम द बिस्टोल्स, अ सिटी ऑफ द साउथ ऑफ इंग्लैंड, वेरी फार अवे, देन वेयर आर यू गोइंग, देन ही वर ऑन द वे ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से बच्चों अपने इंटरव्यू को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लिसन इन के अंदर आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है, कन्वर्सेशन है बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आप कंप्लीट करेंगे बाय लिसनिंग। नेक्स्ट राइटिंग मेडले के अंदर इनफॉर्मल लेटर यू हैव टू राइट बच्चों, राइट अ लेटर टू योर अंकल्स थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू। तो अंकल ने आपको भेज दिया प्रेजेंट, उनको आपने थैंक यू बोलना है और उसके लिए आपने एक लेटर भी राइट डाउन करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ग्रामर रिले के अंदर आपको करना है कंप्लीट जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज। वी मे कोट द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। जैसे कविता said I was working on my project. So we can also report what the speaker said without quoting his her exact words. This is called the indirect speech. Kavita said that she was working on her project. ये था indirect. While changing direct speech into indirect speech, so keep in mind a few changes that the place. तो ये बच्चों changes है tenses को लेकर। टेंसेस में आप इज एम दिया है तो वॉज में चेंज करेंगे, आर है तो वर में चेंज करेंगे। इस तरह से मॉडल्स को चेंज करना है बच्चों। विल अगर आपको मिलता है डायरेक्ट में तो आप इनडायरेक्ट में वुड लगाएंगे, कैन का कुड करेंगे। प्लेस और टाइम को चेंज करने वाले हैं, लाइक टुडे को दैट डे करेंगे, नाउ देन या एट द मोमेंट। तो ये सभी चेंजेस है बच्चों जिनका आप ध्यान रखेंगे और उन्हीं बेस पर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट को चेंज करेंगे। जैसे कि आई एम बेकिंग कुकीज फॉर जीन, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे बच्चों, Grandma said she was baking cookies for you. Change of tenses in reported speech बच्चों, जिसमें आपको डायरेक्ट और इन रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज कर सकते हो। लाइक प्रेजेंट सिंपल मिलेगा तो बच्चों वहां पर पास्ट सिंपल में चेंज होगा। एग्जाम्पल भी दिया गया है साथ में, he said I want to watch a film. He said that he wanted to watch a film. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज, देन प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल्स पास्ट परफेक्ट में चेंज होने वाला है। देन यहाँ पर बच्चों जो आपको टेंसेस देखे उन्हीं बेस पर आपने करना है इसको कंप्लीट सेंटेंसेस को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के बेस पर। मोहन यहाँ पर सीमा को क्या बोलता है, आई लाइक योर हेयर स्टाइल। सो मोहन टेल सीमा आई लाइक हर हेयर स्टाइल नॉट योर। तो इस तरह से बच्चों इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। राइट द करेक्ट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। इसमें अंकित का दिया गया है वर्क इन एन ऑफिस, तो अंकित टोल्ड मी दैट ही वर्कड इन एन ऑफिस। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स टेंसेस के बेस पर भी, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में करेंगे वर्क का बन जाएगा वर्कड। तो इस तरह से औरों को भी आप कंप्लीट करते रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस पर जो जो हमने किया है कंप्लीट उन्हीं बेस पर इसको भी कंप्लीट कर देंगे। देन ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, देन समझते हुए कि टेंसेस किस में चेंज हो रहा है, टेंसेस कौन सा चेंज हो रहा है, टाइम प्लेस के बेस पर हम किसको चेंज करें, तभी आप पूरे ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो भी एक्सरसाइज है रिमेनिंग चैप्टर से रिलेटेड डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट देम स्टूडेंट्स।